Let me put the system on record. It is now recording. Okay, ji. So our today's topic was, if you remember, I had previously mentioned that towards the end of this chapter, we will be discussing the mathematical aspect of all the bulk deformation processes. So, आज की class में we'll be carrying out the analysis of different bulk deformation processes. And when we say different bulk deformation processes, so you know that what I actually mean by that. हमारे पास different bulk deformation processes क्या हैं? We discussed rolling, we discussed forging, extrusion, wire and bar drying. So we'll be carrying out a mathematical analysis of all these deformation processes one by one. Okay, so starting with the flat rolling. अब थोड़ा सा जो है तो आप जहन में लेके आइएगा कि द रोलिंग प्रोसेस, फ्लैट रोलिंग, जिसमें फ्लैट रोलर्स यूज हो रहे थे. वी वर फीडिंग द वर्क पार्ट फ्रॉम वन साइड एंड द रोलर्स वर ओनली मेंट टू रिड्यूस द थिकनेस. जो रिडक्शन इन थिकनेस है उसको हम कहते हैं ड्राफ्ट. ये जो एक्सप्रेशन है अगर आप देखें तो टी नॉट माइनस टी एफ. व्हाट इज टी नॉट? टी नॉट इज द starting thickness, and TF is the final thickness. So the difference of the two is known as draft, जिसको हम D से represent करते हैं. Another term जो हमने discuss किया था in our discussion, and that was R, reduction. अब रिडक्शन क्या है? When the draft is divided by the original thickness. TO क्या है? Starting thickness या original thickness जिसको हम कहते हैं. So draft divided by the original thickness gives us the reduction. ठीक है? So that sort of gives us with respect to the original thickness how much reduction has been carried out. So basically that's what reduction represents. There is another aspect that we need to consider, जिसको हम conservation of material. अगर आप देखें, reduction in thickness results an increase in width. Width में भी increase होता है और at the same time length में भी increase होता है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चीज क्या दे रही है हमें? अगर मैं जो underline कर रहा हूँ, please mention T naught into W naught into L naught. ये क्या चीज है? Can somebody identify? ये क्या होगा? वॉल्यूम. यस सर, वॉल्यूम. ये देखें, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, ओरिजिनल थिकनेस, ओरिजिनल विड्थ और ओरिजिनल लेंथ. दैट शुड बी इक्वल टू द फाइनल थिकनेस, द फाइनल विड्थ एंड द फाइनल लेंथ. तो इसका मकसद है कि कंजर्वेशन ऑफ मटेरियल ज़ाहिर गायब तो नहीं होगा. Material, whenever the thickness would be reduced, so that reduction would be adjusted either in terms of width or in terms of length, or maybe in both. तो जब दोनों cases में width बढ़ सकती है, length बढ़ सकता है, thickness reduce हो सकती है, लेकिन the overall volume of material would remain constant. So this is another aspect that we need to know कि जो during rolling जो है ये हम ऑब्जर्व करते हैं. कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट. अब अगर इसी लेंथ को मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसिडर करूं तो इट बिकम्स वेलोसिटी. अगर L डिवाइडेड बाय टाइम हो जाए तो वेलोसिटी होगा ना, डिस्टेंस पर यूनिट ऑफ टाइम. सही है ना? तो ये आप देखें तो फिर ये क्या टर्म बनती है? शाबाश. व्हाट इज दिस टर्म? T naught into W naught into V naught. Original thickness, original volume, original thickness, original time, volume ओरिजिनल. ये वॉल्यूम नहीं है, ये वेलोसिटी है. वेलोसिटी, वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया सर. वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया. एग्जैक्टली. बिकॉज ये देखें, इसका यूनिट क्या होगा? इसका भी यूनिट जो है तो मिलीमीटर या इंच हो सकता है, इसका भी मिलीमीटर
ये मिलीमीटर पर सेकंड हो सकता है, तो क्यूबिक मिलीमीटर पर सेकंड या क्यूबिक मीटर पर सेकंड। अब क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट। तो इसका मकसद है कि अगर वॉल्यूम एंटरिंग द रोलर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम exiting the roller, जैसे previous equation में, तो similarly we can say the volume flow rate into the rollers should be equal to the volume flow rate exiting, क्योंकि F जो है वो final या exit velocity, exit thickness, exit width, तो उस वॉल्यूम फ्लो रेट, जिस वॉल्यूम फ्लो रेट से मटेरियल इन हो रहा है रोलर्स में, उसी वॉल्यूम फ्लो रेट के साथ मटेरियल जो है वो एग्जिट भी हो रहा है। सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट जो कि हमें रोलिंग के अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लिप। स्लिप का मकसद ये होता है कि देयर इज ऑलवेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्लिप बिटवीन द रोलर्स एंड द वर्क सरफेस। अमाउंट ऑफ स्लिप बिटवीन द रोलर्स एंड द वर्क सरफेस, ठीक है, दोनों के बीच में देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ स्लिप। उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? VF minus VR divided by VR. This is the expression, and S represents slip. VF is the exit velocity of material. VR is the roll velocity, roller velocity. VF आप देखें ये exit velocity of the work है, whereas VR जो है वो roll की rotational speed या rotational velocity है, जिससे जो है तो रोलर जो है वो रोटेट कर रहा है। सो ये जब टर्म्स हम हमारे पास हो, सर जी 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 प्लीज। ये फॉरवर्ड स्लिप थोड़ा सा रिपीट कर सर, फॉरवर्ड स्लिप होता क्या सर? फॉरवर्ड स्लिप मैं वही बता रहा हूँ ना कि जब रोलर्स रोटेट करते हैं तो मटेरियल और रोलर के बीच में सर्टेन अमाउंट ऑफ स्लिपेज हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल वो जिस स्पीड से रोलर रोटेट कर रहा है उसी स्पीड के साथ मटेरियल जो है रोलर के नीचे से गुजर रहा है। देयर इज ऑलवेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफरेंस पे, इस डिफरेंस को हम जो है वो स्लिपेज कहते हैं। तो स्लिप जो है इसको फॉरवर्ड स्लिप इसलिए कहते हैं कि जब रोलर्स जा रहे होते हैं तो मटेरियल उसके बीच में से एग्जिट हो रहा होता है, तो रोलर जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन अ वे आप ये कह लें, तो उस डायरेक्शन के अंदर देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्लिप। और स्लिप हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जब हमारे पास वर्क की स्पीड हो या मटेरियल की या वर्क पार्ट की स्पीड हो और हमारे पास रोलर की स्पीड हो, तो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट कि कितनी स्लिप हो। स्लिप को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। जब मिनिमाइज होगा तो इसका मकसद है कि मटेरियल उसी स्पीड के साथ जिसके साथ रोलर रोटेट कर रहा है, उसी स्पीड के साथ मटेरियल वुड एग्जिट फ्रॉम थ्रू द गैप बिटवीन द टू रोलर्स। अब समझ में आया? ओके, यस सर। ओके जी, अब द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो कि अगर फॉर एग्जांपल ये चीजें हमने ऑलरेडी वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि रोलिंग के अंदर द ट्रू स्ट्रेन दैट द मटेरियल एक्सपीरियंसेस, दैट इज द एक्सप्रेशन जिससे हम ट्रू स्ट्रेन कंसिडर कैलकुलेट कर सकते हैं। Whereas T naught is the original thickness, TF is the final. If we have the two values, we generally have these two values available with us, and we can calculate the amount of strain the material would experience. Average flow stress, अगर आपको याद हो, हमने flow stress calculate किया था, और flow stress calculate तो क्या किया था, उसका expression हमने देखा था। और flow stress का expression अगर आपको याद हो तो these were the two terms जो कि हमने उसमें डिस्कस किया, where K was the strength coefficient, epsilon was the strain, and N was defined as the strain hardening exponent. याद है जी आप लोगों को? Yes sir. Previously that was the value of flow stress. जब आप एवरेज फ्लो स्ट्रेस, अब एवरेज फ्लो स्ट्रेस क्या होती है? एक फ्लो स्ट्रेस तो वो है कि आप मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हैं, एट द मोमेंट द मटेरियल स्टार्ट्स प्लास्टिकली डिफॉर्मिंग या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू होती है, तो व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लो स्ट्रेस। फिर वो फ्लो स्ट्रेस विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है। क्यों इंक्रीज होती है? आपको स्ट्रेन हार्डनिंग का फिनोमेना बताया था कि जब मटेरियल डिस्प्लेस होता है तो वो कॉम्पैक्ट होता जाता है और उसकी जो डिफॉर्मेशन है इट बिकम्स डिफिकल्ट, और जब वो डिफिकल्ट होने की वजह से उसको ओवरकम करने के लिए
फर्दर लोड जो है वो आप इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस करस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होता है। तो अगर एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और स्टार्टिंग फ्लो स्ट्रेस दोनों का कोई एवरेज वैल्यू किसी पॉइंट पे ली जाए, सो दैट इज कंसिडर्ड एज द एवरेज फ्लो स्ट्रेस, अगर दोनों का एवरेज लिया जाए। और उसको कैलकुलेट हम इस एक्सप्रेशन से करते हैं, वेयर एन इज कंसिडर टेकन एज द स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, के जो है वो स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट है। अब एक और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज डी मैक्स इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर। दिस इज नॉट एम, ये आप देख लें, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। ये जो सॉफ्ट में बुक है उसके अंदर गलती है, लेकिन जो हार्ड की बुक है उसके अंदर ये म्यू ही है, म्यू स्क्वायर आर। अब एक हमने ड्राफ्ट डिफाइन किया पीछे, विच इज टी नॉट माइनस टी एफ, ओरिजिनल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस। दैट इज द डिजायर्ड ड्राफ्ट। आप चाहते हैं, आपके पास एक गिवन थिकनेस है और आप चाहते हैं जी इसको 2 मिलीमीटर रिड्यूस करना है, ठीक है, तो टी नॉट माइनस टी एफ इज 2 मिलीमीटर। दैट इज योर डिजायर। लेकिन विद अ गिवन रोलर, ये आर क्या है, दिस इज द रोल रेडियस, विद अ गिवन रोलर एंड विद अ गिवन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू मटेरियल्स, रोलर और वर्क सरफेस के बीच में अगर कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नोन हो, तो मैक्सिमम रिडक्शन या मैक्सिमम ड्राफ्ट हम कितना अचीव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट दैट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Where mu is the coefficient of friction and r is the roll radius. एक और चीज which is very important is the rolling force. रोलिंग फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज द एक्सप्रेशन, और इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब देखें यहाँ पे P जो है वो क्या है, दैट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द रोलर, या P इज द रोल प्रेशर। देख रहे हैं आप, P इज द रोल प्रेशर, F इज द रोलिंग फोर्स। अब कितनी रोलिंग फोर्स अप्लाई की जाए, दैट सेम फोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रेशर। अब फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? शाबाश, Pressure. जी सर। प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। अब Pressure, अगर आप yes. देखें कि विड्थ मल्टीप्लाइड बाय दिस इज अगेन लेंथ, और ये कांटेक्ट लेंथ है, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? ये area, sir. एरिया मिलेगा। एग्जैक्टली हमें ये एरिया मिलेगा। मैं नेक्स्ट एक, शायद मेरे पास एक फिगर है, ये देखें, ये एरिया हमें मिल सकता है अगर हम कांटेक्ट लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करें। नजर आ रहा है आपको? जी सर, बिल्कुल। ये एरिया आपको मिल सकता है, ठीक है, ये जस्ट आपको बताना था। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर, तो आपको क्या देगा? प्रेशर इटसेल्फ इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो आपको फोर्स। तो दिस इज द एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन कैलकुलेट फोर्स। अब यहाँ पे बिकॉज प्रेशर जो है वो वेरी करता है एज फार एज द कॉन्टेक्ट लेंथ इज कंसर्न, डीएल, इसीलिए कॉन्टेक्ट लेंथ की ऊपर जो है प्रेशर की वेरिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए या उस वेरिएशन को एकोमोडेट करने के लिए हम इसका इंटीग्रल लेते हैं फ्रॉम 0 टू L, जब कांटेक्ट लेंथ स्टार्ट होती है और जब कांटेक्ट लेंथ अपनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L के ऊपर पहुंचती है। तो इस एक्सप्रेशन की वजह से हम टोटल फोर्स, रोलिंग फोर्स रिक्वायर्ड जो है, दैट वी कैन कैलकुलेट। इसी रोलिंग फोर्स को हम जो है यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम एवरेज फ्लो स्ट्रेस को कंसीडर करें, ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर के रिस्पांस में हमें क्या मिल रहा है? प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है जॉब पे, तो जॉब के अंदर स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहे हैं, तो दो स्ट्रेसेस अगर हम उसकी एवरेज फ्लो स्ट्रेस की वैल्यू लें, और W अगेन इज द विड्थ एंड L इज द कांटेक्ट लेंथ, तो ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस इज अगेन लोड पर यूनिट एरिया, तो एरिया कैंसिल होके अगेन आपके पास
लोड या फोर्स की वैल्यू तो जो है फोर्स ऑन लोड आ जाएगी सर। एग्जैक्टली आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एवरेज फ्लो स्ट्रेस की वैल्यू, जो कि आप ऑलरेडी इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो आप इसको यूज करके और आप फ्लो स्ट्रेस को कंसिडर कर सकते हैं। ये वीडियो प्लीज अगर किसी की ऑन है उसको ऑफ कर दें प्लीज। जी थैंक यू। ओके सो ओके जी, नेक्स्ट पे आप चलते हैं। अब ये क्यों हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ रही है वो आप ये देख लें कि प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा है। इनिशियली ये प्रेशर की वैल्यू है जब कांटेक्ट लेंथ स्टार्ट होती है, मतलब इस पोजीशन पे, ठीक है, और फिर ये किसी एक सेंट्रल पॉइंट पे जाके जहां पे स्लिप बिल्कुल जीरो हो जाता है, ठीक है, देयर इज नो स्लिप, वहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है इस जगह पे, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू। एंड देन जब कांटेक्ट लेंथ एंड पे पहुंचती है तो फिर ये रिड्यूस होके इस वैल्यू के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये वेरिएशन जो है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, यहाँ तक ये कांटेक्ट लेंथ है, आपको नजर आ एक्सक्यूज रहा मी है सर ये जी। पॉइंटर का साइज थोड़ा बड़ा कर दें। पॉइंटर का साइज, अच्छा चले, मैं असल में या तो मैं पॉइंटर ले सकता हूँ या मैं फिर पेन ले सकता हूँ, पॉइंटर ये हो सकता है। अब ये देखें, इनिशियली the pressure starts with a minimum value, it keeps on increasing, जब लेंथ बढ़ती जा रही है तो the pressure keeps on increasing, तकरीबन सेंट्रल पॉइंट पे जाके जहां पे there is no slip, मैक्सिमम प्रेशर जो है वो अप्लाई होता है, और फिर अगेन लेटर हाफ के अंदर फिर जो है ये प्रेशर जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। सो देयर इज अ वेरिएशन एज फार एज द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। जो नो स्लिप पॉइंट होता है वहां पे आपके पास मैक्सिमम प्रेशर जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। अब कांटेक्ट लेंथ को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, सो दिस इज द एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन कैलकुलेट द कांटेक्ट लेंथ। कांटेक्ट लेंथ आपको पता है, अभी मैंने आपको दिखाया भी उसके अंदर कि ये कांटेक्ट लेंथ हो सकती है। ये आप देखें तो, सॉरी, दिस इज द कांटेक्ट लेंथ, इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक ये कांटेक्ट लेंथ है, या आप यहाँ पे अगर साइड व्यू में देखना चाहें सो दिस इज द कांटेक्ट लेंथ। सो इस कांटेक्ट लेंथ को कैलकुलेट हम इस वैल्यू से कर सकते हैं, विच इज R इंटू टी नॉट माइनस टी एफ। क्लियर है जी? अच्छा, अब टॉर्क, जब आपके पास कांटेक्ट लेंथ भी हो, आपके पास लोड भी हो, तो हाउ मच टॉर्क is to be applied, या how much torque is required per roller, that we can also calculate, F into L। अब F into L जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन दिस। हम नो स्लिप पॉइंट, अगर नो स्लिप पॉइंट आप देखें, सो दिस इज द पॉइंट जहां पे जो सेंट्रल पॉइंट तकरीबन है जिसपे नो स्लिप पॉइंट है, और यहाँ पे ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये आपको नजर आ रहा है, ये फोर्स है, सॉरी ये फोर्स लग रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर, और इसका मोमेंट आर्म जो बन रहा है वो ये बन रहा है, सॉरी मैं इसको डिलीट कर दूं तो देन, ये जो है ये इसका मोमेंट आर्म बन रहा है, नजर आ रहा है जी आप लोगों को? यस सर। ये मोमेंट आर्म है, ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स इनटू कांटेक्ट लेंथ, अब जो फोर्स अप्लाई होती है इनटू हाफ ऑफ द कांटेक्ट लेंथ। अब मैंने आपको बताया कि पिछले केस में आप देखें तो जरूरी नहीं है कि नो स्लिप पॉइंट जो है वो वेरी करता है, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि ये नो स्लिप पॉइंट जो है ये तकरीबन सेंटर में है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सेंटर में है, तो हाफ ऑफ द कांटेक्ट लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसीलिए फोर्स
मल्टीप्लाइड बाय L by 2 या 0.5 L। ये आप देख रहे हैं ना, दिस 0.5 L इज एक्चुअली द पॉइंट जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बनता है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस बन रहा है दिस इज 0.5 L। तो जब आप फोर्स को इस मोमेंट आर्म से, बिकॉज रोटेशन तो इस पॉइंट पे हो रही है ना, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो इस पॉइंट ऑफ रोटेशन का इस फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनता है? 0.5 L। तो ये 0.5 L इज द टॉर्क अप्लाइड ऑन वन रोलर। समझ में आ रही है बात? वन रोलर, एक की। जब दोनों का हो तो फिर कितना होगा? प्लस 0.5 FL अगेन, तो इसका मतलब है ये FL हो जाएगा, फोर्स इनटू कांटेक्ट लेंथ। और जब हम इसको पावर में कन्वर्ट करें टॉर्क को, तो क्या करते हैं जी? बताइए, ये क्या चीज है? ये क्यों मल्टीप्लाई किया है हमने? FL तो मुझे पता चला ना, दिस वैल्यू इज द टोटल टॉर्क। ठीक है, FL टोटल टॉर्क हो गया ना। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है लोगों को? सर ये 2 पाई एरिया हो जाएगा और n रिवोल्यूशन हो नहीं जाएगी नहीं, सर। 2 पाई एरिया नहीं है, 2 पाई n इंटू टी। सर ये सरकमफेरेंस है, लेंथ है। n RPM है यहाँ पे। एक रेवोल्यूशन के लिए आपके पास टॉर्क होगा FL। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, और अगर फॉर अ गिवन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, n क्या है? n ये देखें ना, ये क्या बता रहे हैं? रोटेशनल स्पीड। तो एक रेवोल्यूशन के लिए F इंटू L है कि ये रोलर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, सिमिलरली ये रोलर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। जब दोनों एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क FL। लेकिन हम तो उसको फॉर एग्जांपल 1000 रेवोल्यूशंस में या 500 रेवोल्यूशंस में हम कैलकुलेट करें, तो हाउ मच टॉर्क, हाउ मच पावर हैज बीन जनरेटेड, बिकॉज, ठीक है ना। तो हम उसको, हाँ जी, 2 पाई n से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो n क्या होता है? रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो ये हमारे टॉर्क का यूनिट क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक वुड बी द यूनिट ऑफ टॉर्क? F इंटू L। न्यूटन मीटर नहीं होगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। अब फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है अप्लाई हो रहा है एक रेवोल्यूशन में, और हमारे पास जो है वो 20 रेवोल्यूशंस हैं। तो जब हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो उतना टॉर्क आ जाता है। अगर वो 20 रेवोल्यूशंस एक मिनट में हो रहे हैं, तो फिर क्या हो, यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर पर सेकंड। न्यूटन मीटर पर मिनट या पर मिनट, न्यूटन sorry। मीटर पर सेकंड। पर सेकंड चले मान लें, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड होता क्या है? वॉट होता है, वॉट। जाउल पर सेकंड। और जाउल पर सेकंड क्या होता है? वाट। वाट। वॉट। वॉट पावर। किसका यूनिट है? पावर का। पावर एनर्जी का। एग्जैक्टली। सो इसी तरह हम इसमें से पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सक्सेसिव इक्वेशंस हैं जिससे आप डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको कैलकुलेट करके अल्टीमेटली कितनी पावर रिक्वायर्ड है टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल है। ठीक है जी, एग्जाम्पल क्या है? दिस इज एग्जाम्पल 19.1, फ्लैट रोलिंग की एग्जाम्पल है, ये आप बुक में भी देख सकते हैं। डाटा को जरा प्लीज देखिएगा। अ 300 mm वाइड स्ट्रिप, जो स्टार्टिंग मटेरियल है, इट इज हैविंग अ विड्थ ऑफ 300 मिलीमीटर, और इसकी जो थिकनेस है दैट इज 25 millimeter, is fed through a rolling mill with 2 powered rolls
ईच ऑफ रेडियस, अब ये रेडियस है रोल रेडियस आर, जो कैपिटल आर हम प्रीवियसली यूज कर रहे थे, दैट इज द रोल रेडियस. द वर्क थिकनेस इज टू बी रिड्यूस टू 22 mm. स्टार्टिंग थिकनेस क्या है 25 mm, रिड्यूस करके आपको कितनी चाहिए 22 mm. तो आपको ड्राफ्ट का पता चल सकता है कि कितना ड्राफ्ट ये इसको चाहिए. इन वन पास एट अ रोल स्पीड ऑफ 50 revolutions per minute. अब हमें उसने n की वैल्यू भी दे दी है कि विच इज दी 50 revolutions per minute. The work material has a flow curve defined. अब ये उसका strength coefficient है 275 megapascal is the strength of that material, जो कि आप जिसको आप रिड्यूस करने जा रहे हैं. और उसका जो स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू 0.15. And the coefficient of friction between the rolls and the work is assumed to be 0.12. ये mu की वैल्यू है. Determine if the friction is sufficient to permit the rolling operation to be accomplished. If so, calculate the roll force, torque and horsepower. अब सबसे पहले जो चीज आपने इसमें डिटरमिन करनी है वो कहता है कि is the friction sufficient to permit the rolling operation to be accomplished. इसका मकसद है सबसे पहले तो हमने ये डिटरमिन करना है कि वेदर ये प्रोसेस इस गिवन डायमेंशंस के साथ ये पॉसिबल भी है या नहीं. अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स को जहन में रखें तो यू मस्ट रिमेंबर हमने एक मैक्सिमम ड्राफ्ट की बात की थी कि मैक्सिमम ड्राफ्ट हमें ये बताता है कि गिवन डायमेंशंस के साथ आप कितना रिड्यूस कर सकते हैं, कितना रिड्यूस कर रहे हैं और कितना आप रिड्यूस कर सकते हैं. व्हाट इज योर मैक्सिमम लिमिट. सो इफ द रिडक्शन दैट यू आर कैरिंग आउट या इफ द ड्राफ्ट दैट यू आर कैरिंग आउट, इफ दैट ड्राफ्ट इज विद इन द परमिसिबल लिमिट, तो फिर तो आप अकम्प्लिश कर सकते हैं, यू कैन गो अहेड विद दैट. और अगर नहीं है तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप उसकी रोल फोर्स कैलकुलेट करें, टॉर्क कैलकुलेट करें, हॉर्स पावर. देन इट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड, देन इट इज नॉट इवन जस्टिफाइबल कि उसको कैलकुलेट करें. तो सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो ये देखें जी, ड्राफ्ट जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं दैट इज 3 mm. 25 is the starting thickness, 22 is the final, 3 is the difference. जब हम मैक्सिमम mu square r, remember that expression, d max Yes, sir. equal to mu square r, ये mu square r है, where 250 is the roll radius. 250 mm, ये देख लीजिएगा, ये 250 mm is the roll radius. जब आप मल्टीप्लाई करते हैं so you get what 3.6 mm. तो इस गिवन रोलर के साथ आप मैक्सिमम जो ड्राफ्ट अचीव कर सकते हैं दैट इज 3.6 mm. जबकि कितना चाहिए हमें, हम कितना कर रहे हैं 3 mm. 3 millimeter. हाँ, तो इसका मतलब है कि द प्रोसेस इज वेल विद इन द रेंज. तो पहले तो हमने ये कंफर्म करना था कि प्रोसेस वेल विद इन द रेंज है. अगर है तो देन वी विल गो अहेड विद द फर्दर कैलकुलेशंस, अदरवाइज वी डोंट नीड टू. सो यहाँ पे हम कैसे, जी 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 प्लीज कोई क्वेश्चन. सर फर्ज करें हमारे पास ये 2.6 आ जाता तो सर फिर ये तो प्रोसेस पॉसिबल नहीं था ना सर. पॉसिबल नहीं था. तो इसका मकसद है कि फिर हमें ना हम रोल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ना हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, ना हॉर्स पावर, और हम यहीं पे इसको स्टॉप करके हम ये कहेंगे कि वी कैन नॉट परमिट दिस रोलिंग ऑपरेशन बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल अंडर द गिवन पैरामीटर्स. यस सर. ठीक है. अच्छा, नाउ सिंस इट इज पॉसिबल तो फिर देन वी गो अहेड. अब जब गो अहेड करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम रोलिंग फोर्स कंप्यूटर, वी नीड द कांटेक्ट लेंथ, ठीक है, एंड द एवरेज फ्लो स्ट्रेस. ये वैल्यूज हमें चाहिए तो हम रोलिंग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते. अब कांटेक्ट लेंथ के लिए हमने एक फॉर्मूला पीछे देखा था, अगर आपको याद हो, अगर आप देखना चाहते हैं, दिस इज द कांटेक्ट लेंथ फॉर्मूला, ये वाले R into T naught minus TF, where R is the roll radius. आप देखें 250, 25 minus 22. ये 25 minus 22. 25 is the starting thickness, 22 is the final या draft, आप इसको कह लें तो और उसका रूट ले लें. So this is the value of the contact length. अब contact length calculate करने के बाद
The next thing that you need is the strain, the true strain that the material would observe or would experience. Uska formula T naught by TF, uska log लें, that is the value of epsilon. The value that we are getting is 0.128. Flow stress का expression भी आपको मैंने बता दिया था using N. उसको आप जो value calculate करते हैं, that is 175.7. So you have got the value of strain, you have got the value of average flow stress, और उन values को force के expression में, force का expression अगर मैं पीछे चला जाऊं, ये आप देख लें, ये है फोर्स का एक्सप्रेशन, ठीक है। वो वैल्यूज आप यहां पे डालें एंड देन यू विल गेट द टोटल फोर्स रिक्वायर्ड। अब फोर्स आपके पास आ गई तो एक रोलर के ऊपर कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है, 0.5 FL, वेयर L इज द कॉन्टेक्ट लेंथ। तो उस फॉर्मूला से आपने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क दैट यू आर गेटिंग। अब अमाउंट ऑफ टॉर्क को आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2πn से। आप इस टॉर्क को भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ये वही वैल्यू यहां पे लिखी है, वो वैल्यू। सो अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग इज द पावर 207.201 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, विच इज वॉट। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं? कैन एनीबडी? 750 750 या 60 होगा। 60 50 या 746 746 140 प्रिसाइसली अगर देखें तो 746.7 यहां पे लिखा हुआ है, 745.7 नजर आ रहा है जी। सो गिवन वॉट्स डिवाइडेड बाय 745.7 गिव्स यू, तो इसका मतलब है कि ये 3 mm की रिडक्शन के लिए आपको 278 हॉर्स पावर की पावर चाहिए। Then you will be able to accomplish this particular procedure. Is it clear? Yes sir. Okay जी, हम तकरीबन 39th मिनट पे पहुंच गए हैं, तो बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक तो इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। Is it okay? ओके सर। Okay जी। Okay, sir. Okay.